it's now for the most awaited moment of the evening, and I now request both Amish and Ravina to unveil the cover of Sita, Warrior of Mithila. वेल रवीना, अगर आपकी बात की जाए तो आपको नेशनल अवार्ड मिला है उस फिल्म के लिए जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है। आजकल आपकी फिल्म मात्र जो है उसकी काफ़ी बातें हो रही, उसमें भी ऐसे ही सोशल कॉजेज़ जो औरतों से जुड़े उसकी बात हो रही है। ऐसे में आज आप जिस स्टेज पर खड़ी हैं वहाँ पर भी एक ऐसी औरत की बात हो रही है जो इतिहास के पन्नों में सबसे पहली और सबसे बहादुर औरत रही है, तो कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। एज़ यूजुअल एक और सुपर हिट बुक, एंड जैसे कि मैंने कहा बुक्स में ये हमारी बाहुबली 3 है। तो अमिश को मैं काफ़ी अभी आई थिंक सालों से बोल सकती हूँ, 1-2 सालों से जानती हूँ। एंड आई थिंक जिस तरीके से इन्होंने रेवोल्यूशनराइज किया इंडियन ऑथर्स को हमारे देश में, तब तक हम शायद ऑलवेज चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, कहीं ना कहीं हम ऑलवेज वी यूज टू यू नो आर इंडियन ऑथर्स वर लिटिल लेसर known then what most of us girls would buy Daniel Steele or Mills and Boons, ये वो फलाना डिमका बहुत होता था। बट जिस तरीके के बुक्स अमिश लेके आए, आई मीन द ट्रिलॉजी, द शिवा ट्रिलॉजी, I cannot tell you what a revolution it was. It was with Immortals of Meluha, and I cannot begin to express the fan following that Amish has from that book. It was like a wave. It was like a tidal wave, and मैं जहाँ भी जाती थी तो people were reading this book. यहाँ तक कि मैं आप लोग को एक किस्सा बताऊँ जो मैंने इनको बताया। मैं इनकी तीसरी जो ट्रिलॉजी की 3rd बुक थी, it was The Oath of the Vayuputras. मैं एक फ़्लाइट में थी फ्रॉम लॉस एंजलिस टू लंदन, एंड मैं बहुत मज़े से प्लेन में बैठी थी, एंड मैंने ऐसे ही कहीं बीच में ऐसे करके मुड़ के देखा जो मेरी बगल वाली सीट में थे। आई वॉज रीडिंग ओथ ऑफ वायुपुत्रास, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे बाजू वाली सीट में कौन था? इट वॉज Al Pacino. It was Al Pacino next to me, and I went like and he was like, yeah, hi, and I'm Al Pacino, whatever. And I said, so I hate introducing myself. मैं ये नहीं बोलना थी हिंदी फिल्म की मैं हीरोइन हूँ, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, I was very starstruck and everything. And then he asked me, which is this book that you're reading? And I told him, this is Oath of the Vayuputras. It talks about our ancient India and about our history. And yes, there is a bit of fiction, but it's mostly based on facts and records of what we've heard and what we've learned over the years. And when we got down at the airport in London, I made him buy the book. I made him buy Immortals of Meluha and the book. So Al Pacino has his books. And I sent him a snapshot. मैंने अमिश को एक snapshot भेजा. I made him write on the book. And I sent a snapshot to him. I said, see, Al Pacino with your book. So, like I said, it's not only India that has a huge fan following now. Now I can say he has an international fan following. And I'm so proud and honored to be here that Amish thought of me to be a part of this glorious book that I think we are all waiting for, especially all the women in India who feel so strongly, because ancient India had very strong, powerful women. We were free to make our choices, we were free to do what we want, and I hope that era comes back. So I think somewhere he's instilling that Sita in all of us, and long live Ma Sita. That's all I can say. Congratulations. Fantastic. So अमीश की जितनी भी कलेक्शन है आपके घर में, उसमें एक और जो किताब जुड़ने वाली है, I'll request Amish and Ravina.
So can we start the Q&A session now? Yeah? The floor is open for your questions. सबने अपने सवाल वो जो इंटरव्यूज होने वाले हैं उसके लिए बचा के रखे हैं, राइट? मैं पहला सवाल पूछ लेती हूँ। या ओके, रवीना, मैं जैसे ट्विटर पे आपको फॉलो करती हूँ। अरे मैं तो हाँ, इनसे भी पूछूंगी। ये सवाल जो है वो होते हुए इनकी तरफ ही पहुँचेगा। आपके जो ओपिनियंस हैं, जो आप एकदम खुलकर जो भी लिखती हैं, कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि आपको डर नहीं लगता। तो क्या ऐसी ही सीता आपको लगता है अमीश की सीता वॉरियर ऑफ मिथिला में नजर आएंगी? मैंने किताब नहीं लिखी है, ये तो आपको अमीश से ही पूछना पड़ेगा। आपके साथ में ही खड़े हैं। इसका जवाब आप दीजिए। मैं प्री रिलीज कॉपी आपको भेज दूंगा मिड मे तक, तो तब आप पढ़ के तो फिर मुझे आपको जवाब दे देंगे। मैं पढ़ चुकी होंगी। मैं कितनी हूँ सीता में, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ कि हाँ, थोड़ी बहुत निडर हूँ मैं। काफ़ी बार ऐसे भी हुआ है कि जब आप सच्चाई बोलो तो कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती है, लेकिन मैं रूड नहीं हूँ। मैंने कभी मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, लेकिन जो सही चीज़ है और जो वॉट एवर इज़ द राइट थिंग टू डू, आई ट्राई टू डू दैट एज मच एज आई कैन. But I am not the kind who will intentionally want to hurt anyone's feelings. So I keep that definitely in mind. But I do fight for the right thing, and I do fight for justice, probably, yes. But not the way Sita fights. I mean, There's a lovely Sanskrit line which describes exactly what she said. Satyam bruhat, priyam bruhat. Speak the truth, but speak it with love. Exactly. जो प्यार से चीज़ सॉल्व हो सकती है, मुझे लगता है लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकती है। लेकिन जब अपने आप को डिफेंड करने की बात आ जाती है, तो फिर मैदान में घुस जाना चाहिए। And actually that's what this scene is about. This is actually about the kidnapping of Sita Ma. So she's not someone who's just picked up by one person. There are 100 soldiers who attack her. She's outnumbered, but she's an alpha female. So even when she's outnumbered 100 to 1, she's not defensive. She attacks. She charges. She breaks a few heads. She kills a few. She's outnumbered, so she loses. And hence she's kidnapped. This is actually that scene. She's attacked by 100 Lankan soldiers and she's fighting them. Yes, darling, I was waiting for you. हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं। आज तक जो आपने सीता माँ की जो कहानियाँ सुनी हैं, आपने रामायण को सीता माँ के नज़रिए से पढ़ा होगा शायद। और रामायण जो शब्द रामायण जी है, वो श्री राम की कहानी है। यन मतलब जर्नी, तो जर्नी ऑफ राम, रामायण का अनुवाद वही है। ये रामायण सीता माँ के नज़रिए से नहीं है, ये सीता माँ की कहानी है, उनके जन्म से उनके अपहरण तक, जिसमें श्री राम एक पात्र हैं जो किताब के लास्ट 1/3 में आते हैं। तो ये उनकी कहानी है कि वो कैसी एक योद्धा थी। और हमारे मन में जो छवि है सीता माँ की, वो एक 1980s टीवी सीरियल पर आधारित है ज़्यादातर। लेकिन आप प्राचीन रामायण पढ़ें, अद्भुत रामायण पढ़ें, उसमें वो योद्धा थी। रावण का वध सीता माँ ने किया था, श्री राम ने नहीं, अद्भुत रामायण में। मैं आपसे यही पूछी हूँ कि अभी तक राम की कहानी सुनाई जाती थी, अब वक्त आया जब सीता की कहानी सुनाई जा रही है। सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है आज के भारत में। और हमारे
प्राचीन स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है, जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती उस देश को भगवान भी त्याग देते हैं। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। हमारे एंशिएंट कल्चर को रिवाइव करने की ज़रूरत है। आपने रवीना से क्यों कवर लॉन्च करवाया? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, सक्सेसफुल वुमन है। और मैं ये इस किताब में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, मैं सब इवेंट्स एक स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल वुमेन के साथ ही कर रहा हूँ। तो जो अनाउंसमेंट हुआ था किताब का, वो स्मृति ईरानी जी के साथ हुआ था। कवर लॉन्च रवीना टंडन जी के साथ हो रहा है। और आप आगे की भी जो इवेंट्स देखेंगे वो सब मतलब ऐसे ही इवेंट्स होंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? बट मतलब मैं एक मर्द तो रहूँगा। मैं लेखक हूँ तो। So sweet. Any other Thank you so question? much everybody for being here this evening. And हाँ जी, आ गए? सीता के बारे में जिसने जैसे बताया सर ने कि जी हाँ, आपकी राकेश। परसेप्शन बदली है सीता को लेकर कि योद्धा थी। सर ने कहा कि वो 1980s के सीरियल की तरह दिखाया है, लेकिन ये बुक में योद्धा दिखाया उन्हें, तो कुछ परसेप्शन बदली है आपकी सीता को लेकर? देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये मुझे ऑलवेज एक जानकारी थी कि जो हमारी औरतें थी, जो एंशिएंट इंडिया की औरतें थी, काफ़ी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी भी हुआ करता था। एंड जहाँ के औरतों को फ्रीडम था, न कुछ ऐसा पर्दा सिस्टम था, न कुछ ऐसे था कि आप औरत हैं तो आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आपने अगर हमारी हिस्ट्री पढ़ी है, हमारी बहुत बुलंद रानियाँ रह चुकी हैं जो जुनून लेके योद्धा भी होती थी। तो वो हमारा एंशिएंट इंडिया था। कहीं ना कहीं वो कुछ परसेप्शन बदलता गया अबाउट इंडियन विमेन। एंड जैसे कि आमिश ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी औरतें रहती थी और जहाँ हमारी जैसे लिनिएज जिसको बोलते हैं, जो एक नस्ल चलती आ रही है, उस नस्ल को वापस और हमारी औरतों को वापस उस मुकाम पर लाना जहाँ आदर, रिस्पेक्ट और उनको उनके राइट्स दिए जाएं। तो फॉर मी सीता जहाँ तक कि मेरे समझ में थी, अंत में भी उन्होंने कभी अपनी खुददारी नहीं खोई। आप अगर पूरा पढ़ें तो जिस रूप में आमिश उनको ला रहा है वो बहुत ही इट्स अ रेवलेशन एक्चुअली। शायद नॉट फॉर पीपल लाइक मी, जिनको ऑलरेडी, मुझे ऑलवेज इंटरेस्ट था हमारी हिस्ट्री में, ऑलवेज हिस्ट्री इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो अब तक कहीं ना कहीं जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसको आई फील ऑलमोस्ट दबाया गया है। और जो हमको सिखाया गया, जो हमारे ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स में आ गया, वो जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए टेक्स्ट बुक स्कूल में दिए थे, उसमें से हम जानकारी पाके वो ऑलमोस्ट टीवी सीरियलिश हो गया था। या तो जो अमर चित्र कथा से हमने पढ़ा वो हमें पता चल गया। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुक्स लाइक दिस टू कम आउट, वेयर वी स्टार्ट सीइंग आवर विमेन इन द ट्रू राइचियस, strong form that they've always worshipped in. That's why our women most of the time were worshipped. अगर आप देखेंगे, हमारी औरतें इतनी स्ट्रॉन्ग थी, एंशिएंट हमारा जो कल्चर था, कि चाहे आप नदियों को ले लो या हमारे पहाड़ों को ले लो, वो औरतों के ऊपर ही उनका नाम दिया जाता था। सो आई बिलीव दैट एंड इवन अगर आप हमारी धरती को हम धरती माँ पुकारते हैं, भारत को भारत माँ पुकारते हैं, तो वो हमारे कल्चर में रहा है। उसको उभर के वापस लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, एंड आई थिंक विच ही इज़ डन विद द कैरेक्टर सीता। रवीना, इसके अलावा आपने कहा कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो बाहुबली काफ़ी अच्छा कर रही है बिजनेस के मामले में भी। बाहुबली इज फिक्शन, बाहुबली इज नॉट आवर हिस्ट्री। बाहुबली फिक्शन है, वो तो फिल्म है। पॉपकॉर्न लो, कोल्ड ड्रिंक लो, जाके एंजॉय करो और वापस आओ। आपने देखी, आपको कितनी I think questions मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार ये फिल्म्स की। मैं क्यों नहीं कुछ बोलूंगी, को तो पसंद आनी चाहिए। मुझे तो पसंद आई। Amish, I like to ask one question. Like after modern outlook of Ram in your first book, and then a very different personality of Sita in this book, which another character of Ramayana is stirring in your mind? Actually, the next book will be on Ravan. Actually, so there'll be my interpretation of Ravan, and I've started writing it already, and I'm having a lot of fun writing it. Yeah, so I'm kind of maybe one-tenth of the way through, but I'm having fun writing it. He started writing and I've already started thinking किसको बुला सकते हैं रावण के लॉन्च पे। रावण के लॉन्च पे ये किसको बुलाएगा, वो मुझे देखना है। Don't suggest the guest names here. That's what will get printed. रावण का कवर कौन लॉन्च करेगा?
यार ये आंसर मैं क्या दे सकता हूँ, रवीना आप दे दो. अभी ना इस मंच पे किसी और का नाम लिया ना आमिश ने तो बहुत अच्छा नहीं होगा. नहीं नहीं, बट रियली आई मीन गोइंग विद द ट्रेंड एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली जो समवन हु सिंबलाइजेस और लुक्स दैट पावरफुल इनफ, ऑब्वियसली, एंड when it is made into a movie, then we shall see. I'll be producing the film for sure then. 100%. Are we done? Thank you so much. Anybody else over here? Yes, sure. I want to ask you what has been. Yeah. Hi, I'm Sankalpita from Book Geeks. I want to ask you what has been your best, most thrilling moment in your entire writing career? Besides this one? Yeah, thank you, Ravina. Entire writing career. Entire writing career is actually when my first book, Immortals of Melua, it was rejected by every publisher that it was sent to. And finally, we self-published because they said it's a religious book, so they said it will not sell. These are success And they said that the main market is the youth. The youth aren't interested in such subjects. So actually, we self-published the book. And my most thrilling moment was when the first print run came home, and my son was, no, the check wasn't that big those days. check came home. But my kid was a year old at that time, and we opened the carton together, and he was kind of flipping through the book. That was one of my most favorite moments of my life, actually. Which is your son's favorite book? Like, which Right you now? have written? Yeah. No, he can't read my books right now because there's some violence and he's only 8 years old. But Harry Potter? Yeah. Can I say Harry Potter? Okay, he's finished Harry Potter already. He reads a lot. Both his mother and father, we both read a lot, so he also reads a lot. He's a very smart kid. Self-published. Alright, so I think Sir, actually, I want to thank you. Means I was never interested in this kind of fiction, but because of you, you made history more interesting. And I also wanted to ask, means after Ramchandra series, we thought you will be progressing forwards or taking. But what was your inspiration, means for writing about Sita? And do you think in present scenario that women have means not lost, but they have. They are not that powerful which they were before, and you have projected her as a muscular and a athletic woman, yes, And strong woman, I not agree only with you. physically but also mentally. I agree with you entirely, and as Ravina said earlier, this is something that we need to learn. In ancient times, we actually had a far more equal society. And how can a society progress if half of that society is not allowed to contribute? So मतलब आप एक पाँव काट दो तो चलोगे कैसे, भागोगे कैसे? So this is something very crucial, and Sita Ma is a role model for many of us. So seeing her as not just physically strong but a mentally strong, tough woman, I think is an important movement to have. And I'm trying to make my own small contribution to it. She's made wonderful contributions to it with her movie, with Matra, with so many other movies that she's done. And I think all of us need to play our role in this. This is a very important movement. I think we all should congratulate Amish for this wonderful book and this wonderful cover. I'm sure आप सभी को ये अपनी इस And if we are ending, if I may, I want to thank Ravina. Thank you so much for coming here and gracing this occasion. You've really made this event that much more special. And I should also thank the agencies who have designed this cover, this wonderful piece of work. That's Sideways out there. Abhijit, raise your hand. And Abhijit and team. And Arthat out there. These are the two geniuses who've actually put this together. Absolutely brilliant work. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Okay, so individual interviews will happen shortly, but don't forget to pre-order the book at Tidal Waves, and you will get an autographed copy, from Amish.
सो रवीना मैम, सबसे पहले तो सीता बुक के बारे में क्या कहना चाहिए? आप लॉन्च करने के मौके पर आई है, कितना स्पेशल मौका है आपके? आई थिंक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आमिश की फ़ैन रह चुकी हूँ। इनकी जो इनकी जो लिखी हुई किताबें हैं मेरे कलेक्शन में ज़रूर हैं और मैं इनकी बुक्स पढ़ती हूँ। और जैसे कि मैंने शुरुआत की और मैंने कहा मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अपने बुक्स पेश किए हैं हमारी इंडियन जनता को एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी जैसे कहेंगे कि जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि पहले तो हम सिर्फ ऐसी किताबें पढ़ते थे मोस्टली जो इंडियन ऑथर्स नहीं इतने फेमस होते थे, लेकिन आमिश ने वो पूरा चेंज कर लिया है वो नोशन। एंड आज इनकी किताबें इतनी वाइडली पढ़ी जाती हैं। उसके अलावा इन्होंने जो हमारी हिस्ट्री थी, जो हमारा एंशिएंट पीरियड था, जिससे हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे थे और कहीं ना कहीं जो आज भी आप अगर काफ़ी टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए हिस्ट्री लिख के गए थे वही हम पढ़ रहे हैं और वही हम सीख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पूरा हमारा पास जो हमारी हिस्ट्री रह चुकी है, जो हमारा एंशिएंट कल्चर हेरिटेज रह चुका है, जिस तरीके से इन्होंने पेश किया, आई थिंक मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान ने कैसे इनको एक्सेप्ट किया है और कितनी इनकी बुक्स पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे आग जैसे फैला देती हैं इनकी बुक्स, उस तरीके से उनकी बुक्स बिकती हैं। सो आई एम वेरी ऑनर्ड टुडे कि आज इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है सीता, विच जहाँ आप जैसे खुद आमिश के लफ्ज़ों ने इन्होंने कहा कि सीता एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं दब गई थी, छुप गई थी। ज़्यादातर रामायण में जब होलिस्टिकली बात करते हैं तो सिर्फ वही एक कहानी चलती आ रही है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की कहानी क्या थी और वो कैसे बने जो और उनके ऊपर क्या गुजरी, वो एक एक को उभर के ला रहे हैं। आई एम सो प्राउड कि आज इन्होंने सीता के ऊपर लिखी है। आप प्राउड फील कर रहे हो? अभी इनको पहले बोल रहे थे। हाँ, जैसे आपने जिक्र किया है सीता जी के बारे में, बहुत लीडर हैं और इसलिए आपने रवीना को चूज़ किया आपके और फोटो के लिए या कोई दूसरी कोई और बताइए? नहीं, आपका जो सवाल है जवाब उसमें ही है। आप सही कह रहे हैं। ये इस किताब में जो भी इवेंट्स हुए हैं मैं सिर्फ महिलाओं के साथ इवेंट लॉन्च कर रहा हूँ और ऐसी महिलाएं जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जिन्हें खुद अपना मुकाम बनाया है। तो इस किताब की जो अनाउंसमेंट थी टाइटल की, वो मैंने स्मृति ईरानी जी के साथ की थी और कवर लॉन्च मैं रवीना जी के साथ कर रहा हूँ। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। इन्हें हम लोग ट्विटर में बातचीत हुई थी हमारी, इन्हें मेरी एक किताब पढ़ी थी और मुझे कांटेक्ट किया था। तो हर इवेंट में एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल महिला के साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक ये रोल मॉडल्स हमें देश के सामने और प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी जो देश में जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इन रोल मॉडल से प्रोत्साहित हों, इंस्पायर हों और खुद भी आगे बढ़ें और देश को भी आगे लेके जाएं। फाइनली मतलब रवीना जी ने कही दिया कि वो प्रोड्यूसर बनेगी, मैंने कही दिया कि अगर मूवी बनेगी तो प्रोड्यूस करना चाहिए और ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा। चलो। जैसे कि मैंने कहा, बाहुबली का 3rd है ये, बाहुबली 3 ऐसे बनेगी एक महिला के साथ। जैसे रवीना जी आपने कहा है कि आप मतलब आप हमेशा कोई भी मुद्दा हो आप खुल के बात करते हैं, तो अभी मैं जानना चाहूँगा ये सब कौन आगे जा रहा है? मैंने स्ट्रिक्टली हम लोग को बोला, मैंने कहा मना किया था, मेरे ऊपर डाल रही है, मैं तो निडर बोलती हूँ। मुझे ही बोला था, बुक के अलावा प्लीज़ मैम कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा, मात्रा काफ़ी अच्छा। भारतीय सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं इंडियन सिटीजन होने के। अच्छा, देखिए क्या कहना चाहेंगे? कोई नया इनिशिएटिव आपके हिसाब से काहे का इनिशिएटिव? कोई नया इनिशिएटिव भारतीय सरकार को लेना? 3 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार 26 में, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, मैं अभी किताब के बारे में ही मैं सब आई थिंक ये समय पे किताब के ऊपर भी बातचीत हो तो शायद बेहतर होगा। ये आप एक शायद दूसरे मौके पे पूछ लें तो बेहतर होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मात्रा काफ़ी अच्छा कर रही है तो उसको लेकर कितना प्राउड फील करते हैं, लेकिन स्क्रीन्स काफ़ी कम मिली थी मात्रा को। जी हाँ, स्क्रीन्स कम मिली थी, लेकिन बाहुबली के आने के अलावा अभी तक मात्रा चल रही है। जो दूसरी पिक्चरें नहीं चल रही है, मात्रा अभी भी लगी हुई है, कहीं ना कहीं कोने में टिकी हुई है। तो आई थिंक देखिए, ऐसी फिल्म जो सोशल मैसेजेस वगैरह के साथ हैं वो इतनी भी चल लेती हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो वो अपने आप में ही एक सक्सेस है।
एंड जैसे कि मैं लोगों को बोलती हूँ, एक दो ही पिक्चरें चल रही हैं आजकल थिएटर, एक बाहुबली और एक मात्र। तो ये अच्छा है, जैसे मैं लोगों को एक और चीज़ बोलती हूँ, गलत मत समझिएगा, लेकिन इस समय 5 उंगलियाँ घी में, क्योंकि मात्र भी मेरी है और बाहुबली भी मेरी है, सो आई कैन नॉट रियली डिफ्रेंशिएट के यू नो, सो इट्स गुड, आई थिंक इट्स गुड कि मात्र टिकी हुई है विद अ फिल्म लाइक बाहुबली। बट या इट्स मैं ऑडियंस को और जो आप लोग जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद की है मात्र के लिए और ऐसे एक सोशल मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। यू नो रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप मेरे ट्विटर लाइन पे जाइए, मैं रोज़ एक किसी रिव्यूअर को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि इतनी अच्छी रिव्यूज़ आए हैं और बहुत तारीफ़ हो रही है फिल्म की। तो आप मेरे टाइम लाइन पर जाइए तो आप सब देखेंगे, चाहे वो डेक्कन क्रॉनिकल हो, टेलीग्राफ हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, मुंबई मिरर हो, एवरीवन्स लव द फिल्म। हाँ, यू कैन नॉट विन देम ऑल, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं अच्छी लगी, लेकिन यू कांट प्लीज़ देम ऑल। तो इट्स फाइन, वो 2-3 ऐसे ख़राब रिव्यूज़ आते हैं जिनको नहीं अच्छी लगी, शायद मैं उनके टाइप की पिक्चर नेक्स्ट टाइम करूँगी, उनको अच्छी लगेगी, और फिर दूसरे 10 है उनको नहीं अच्छी लगेगी, तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।